Hello, everyone. Welcome back to our reading comprehension series for the CSAT 2025. This is the class number 4. And if you have been following me along so far, so great job staying consistent. In the last few sessions, we have talked about many things. We have understood the fundamentals, how to approach a passage, identify the key ideas, how to eliminate the traps, options given in the passage, also many more things. Now, today we are going to take things a step further. Like in this class, we will focus on the inferences or the assumption based questions. Like, see, these questions are most of the times, and those are the tricky ones where the answers is not directly stated, but you have expected to read between the lines. And that's why these are the kind of the questions that separates the average scorer from bottom to top scorer. And today we'll go through a few passages together. We'll break down the logic and learn how to train our brain to think like a examiner, the examiner. Okay. So grab a pen, stay alert, and let's dive into today's session. But before going through session, I want to say something or to ask a favor to you. If even a one single person or a single aspirant is getting benefited from this initiative or the whole series of a master reading comprehension, so guys, I'm asking you a favor that please hit the like button and do share with your friends, because the CSAT and particularly reading comprehension will benefit you to clear the CSAT. And I think you should also suggest some measures or some kind of feedback which you feel like I should add on in the coming lectures. So you should also give the feedback in a comment section. So I will repeat again that if you like this initiative, please like and comment, and also subscribe our channel so that we can continue this initiative, and many more are coming to increase your preparation in a one level further. So that's all. तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने लास्ट सेशन में एक पैसेज दिया था. ऑफ कोर्स हर सेशन में मैं एक पैसेज दे रहा हूँ आपको करने के लिए. और सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं कि ये पैसेज क्या कहता है. सो जैसा कि मैंने सारे ही अपने पूरे लेक्चर्स में ये बताया है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ना कि पैसेज देखना है, ना ही ऑप्शंस देखने हैं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पैसेज में, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन द गुड पीपल. ओके. सो ये एक वेग टर्म टाइप का है, लेकिन अगर बिना पैसेज पढ़े हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे. सो फर्स्ट रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. लाइक मोस्ट पीपल would agree that telling deliberate lies is wrong, except perhaps in a certain special situation where more harm will be done by telling the truth. Now, even the most truthful people probably tells, याद रखना, most truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as a semantic lies. ठीक है. Now, their use of words contains some measures of a falsehood and more or less deliberate. Now, what does it means? What the passage is talking about? What kind of passage the author is trying to say with regard to this passage? See, the passage is basically discusses the morality of lying. Like, it says the most of the people agree that lying on a purpose is wrong, unless you are in a situation where the telling the truth might cause more harm than the good. However, it basically goes a step further to suggest that even people who are generally very truthful end up telling many small or subtle lies. Like, कई बार तो जो सच बोलते हैं वो भी झूठ बोलते हैं. But these are called the semantic lies, जो ये basically ये कह रहा है. Now, semantic lies meaning lies that comes from how we use the language. Like sometimes we say half truth or a misleading words. These might not be outrightly lies, but they still believe that they say the truth some way, like whether intentionally or non-intentionally. So this is the whole passage is talking about. And now let's go to the options which are given in this passage. Like पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्या कह रहा है कि लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन अ गुड पीपल. तो गुड पीपल के बारे में जो बोला गया है ये बताया गया है. देखो यहाँ बोल रहे हैं ना कि मेनी अ टाइम्स पीपल प्रोबेबली टू टेल अ गुड मेनी मोर लाइज दैट माइट बी रिगार्डेड एज सिमेंटिक लाइज. है ना. देयर यूज ऑफ वर्ड कंटेन्स सम मेजर्स ऑफ अ फॉल्सहुड मोर और लेस डेलिबरेट. नाउ ऑप्शन क्या कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ द ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स को मिक्सिंग करना, ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया है इसमें.
सेकंड कह रहा है इंटेंशनल मिक्सिंग ऑफ, सी सेमेंटिक लाइज का ही मतलब है जो मैंने अभी बताया कि मीनिंग लाइज दैट कम्स फ्रॉम द हाउ वी यूज द लैंग्वेज, लाइक वी से हाफ ट्रूथ और समटाइम्स मिसलीडिंग वर्ड्स, तो इंटेंशनली तो हो गया ना। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटेंशनल मिक्सिंग ऑफ द ट्रूथ विद द फॉल्स। तो आगे पढ़ने की ये जरूरत ही नहीं, फिर भी देख लो। फॉल्सिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, ये भी नहीं, ये रिलेवेंट है। सो आंसर इज बी। तो आज का पहला पैसेज देखते हैं। सबसे पहले देखो कि एजम्पशन क्या पूछ रहा है। एजम्पशन पूछ रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एजम्पशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब पैसेज पढ़ो। नाउ फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द पेटेंटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म। क्या बोल रहा है कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स, पहले बात तो ये बताओ कि पेटेंट किसको बोलते हैं। पेटेंट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ लीगल राइट ऑन समथिंग, एंड हियर इट इज टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली द फार्मास्यूटिकल पेटेंट। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल पेटेंट के बारे में बात हो रही है। So pharmaceutical patents grant protection to the patentee for a duration of the patent term। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो फार्मास्यूटिकल पेटेंट दिया जाता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, पेटेंटी को। पेटेंटी यहाँ पे कौन हुआ, जो पेटेंट करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनी, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म। पेटेंट टर्म फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए अगर उसको मिला, तो वो उस पीरियड में उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको, पेटेंटी को। कौन दे रहा है प्रोटेक्शन, फार्मास्यूटिकल पेटेंट, ठीक है, समझ में आई बात। नाउ patentees enjoy a liberty to determine the prices of the medicine which is a time limited to the period of monopoly but could be unaffordable to the public at large. Now, such patents protection offered to the patentees is believed to be benefited for the public over a longer term through innovation and research and development, although it comes at a cost of in future higher prices for the patented medicine। अब इसका मतलब समझो, देखो सीधी सी बात ये कह रहा है कि when a company or any individual invents a new medicine, they can get a patent for it, of course. Now, this gives them exclusive legal right to make or sell them at for particular medicine for that limited period of time, जो patent term होता है ना, for example 10 years, for at any cost they want, जो भी मनमानी तरीके से वो कितने भी प्राइस में बेच सकते हैं। बट इससे हार्म क्या होगा, ड्यूरिंग दैट पेटेंट पीरियड they can set a high price, जैसा कि मैंने कहा, but this can create a बर्डन, ह्यूज बर्डन ऑन दी पब्लिक एट लार्ज। जो आम जनता है उसके ऊपर एक ये आर्थिक रूप से बर्डन दे देगा कि भाई 10 रुपए की दवाई अगर 100 रुपए या 1000 रुपए में बेचेंगे तो अल्टीमेटली उसको उससे कौन सफर करेगा, पब्लिक करेगी। यही तो ये कहा जा रहा है ना इसमें कि अनअफोर्डेबल फॉर द पब्लिक। नाउ वाइल इट फर्दर ये कहता है, यहाँ पढ़ो कि द पेटेंट रिजीम एंड द प्राइस प्रोटेक्शन थ्रू द लीगली वैलिडेटेड हाई प्राइस द मेडिसिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेटेंट प्रोवाइड द पेटेंटी विथ अ लेजिटिमेट, यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है, लेजिटिमेट मैकेनिज्म टू गेट रिटर्न ऑन द कॉस्ट इनकर्ड इन द इनोवेशन एंड द रिसर्च। नाउ अब समझो ये क्या कह रहा है कि while this can whole process that is the medicine unaffordable for the public at large, but it is considered beneficially in long run. Why? Because these gives the profits and supports for further innovation and research and development, and that will lead to newer and a better medicine in the future। यही तो बात कर रहा है ना कि research and development को ये promote करता है। Now this system is designed to ensure that the investment made in R&D, that is the research and development, is recovered, making it a legitimate mechanism। जो ये बोल रहे हैं ना कि इसको legitimate mechanism के थ्रू बनाया गया है। And this is the business model for the pharmaceutical companies to continue innovation, innovation को continue रखना। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। समझ गए, नहीं समझ में आया फिर से एक बार पीछे करके देखना, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। नाउ ऑप्शन देखो कि क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है कि पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू द पेटेंटीज पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन। अभी मैंने यही चीज बताई है आपको कि यहाँ पे वही बात की गई है कि पेटेंट प्रोटेक्शन जब दिया जाता है किसी भी पेटेंटी को, तो वो ह्यूज बर्डन क्रिएट करता है ऑन पब्लिक के ऊपर, किसके ऊपर, पब्लिक एट लार्ज के ऊपर, ऑफ देयर परचेजिंग पावर, है ना। फॉर पेटेंटेड, अगर मेरे को कोई पेटेंट मेडिसिन खरीदनी है तो वो कोर्स वो उसके जो उसका जो पेटेंटी होगा, उसकी जो कंपनी होगी, वो अपने मनमानी रेट पर बेचेगी क्योंकि उसके पास पेटेंट प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको। तो उस पे जो अल्टीमेट सफर कौन करेगा, मैं करूंगा, आप करेंगे, पब्लिक एट लार्ज करेगी। वही तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, वही तो ये पैसेज बोल रहा है ओवरऑल। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट देखो, इससे पहले आप, क्योंकि ये 1 2 और 1 4 3 4 इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप देखो कि जिसमें ऑप्शन एक है उसके अलावा जितने भी हैं वो सब आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में एक दिख रहा है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को आप यहीं पे मार्क कर सकते हो एज अ रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बचा दो।
अब दो में या तो दो दिख रहा है या फिर चार दिख रहा है, एक तो कॉमन है, तो या तो दो सही होगा या तो चार सही होगा, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट तो आउटराइटली यू कैन एलिमिनेट फ्रॉम ऑप्शन ओनली। बट फिर भी मैं बताऊंगा, इसको पढ़ेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज अ ह्यूज बर्डन फॉर द डेवलपिंग एंड द पुअर कंट्रीज। अब ध्यान से पूरे पैसेज को पढ़ के मेरे को ये बताओ कि क्या इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं से भी ये समझ में आ रहा है, अज्यूम कर सकते हैं हम कि ये कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है कि नहीं भाई इससे आप डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज को हार्म कर रहे हो? नहीं, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑन ए इंडिविजुअल लेवल और पब्लिक एट लार्ज बता रहा है, बट कंट्रीज की तो बात ही नहीं कर रहा। सो एज पर दिस पैसेज इट इज इररिलेवेंट, ये कहीं से भी रिलेट नहीं करेगा। तो अब तो ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि चौथा सही होगा जो कि ऑप्शन पे दिए हुए हैं। बट तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है कि प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन अ मेनी कंट्रीज। ठीक है, फिर से पढ़ो। प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ। ध्यान से समझो, ये फैक्चुअली तो सही चीज बोल रहा है कि इट शुड बी अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ। जब भी आप पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनाओगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन क्या ये कहीं से भी पैसेज से रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? बताओ ध्यान से, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप बताओ कि कहीं पे भी आप पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हो कि ऐसी होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी? नो, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सो द फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट, तो ये तो गलत हुआ, समझ में आया? नाउ एक्चुअली सही है लेकिन पैसेज से ये रिलेट नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल स्टेटमेंट थ्री का मतलब इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट्स आल्सो। ध्यान से, पेशेंट की बात कर रहे हैं ना, मरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से देखो जो ये बोल रहा है पैसेज कि प्रोवाइड द पेटेंटी विद अ लेजिटिमेट मैकेनिज्म टू गेट रिटर्न्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द इनकर्ड इनोवेशन एंड रिसर्च। और एजम्पशन का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे इनफर कहीं ना कहीं से ये अज्यूम हम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी, गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेप लेने की जरूरत है जहां पे वो बैलेंस मेंटेन कर सके इसके बीच में, पेटेंटी यानी कि जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, और साथ में जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं यहां से आपको इस पैसेज से अज्यूम अजम्पशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? पहली बात तो आप ऑप्शन से ही इसको आज एलिमिनेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन दूसरे टाइप में है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, इस टाइप से आता है, तब भी आप इसको एक एक लाइन को पढ़ के उसकी वेकैबुलरी को समझ करके आप अच्छे से इसको निकाल सकते हो। समझ में आई बात? अगर आपको कहीं पे भी मान लो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन भी जरूर देखिए, और हिंदी वालों को अगर नहीं समझ में आता है तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखें। ठीक है ना, ये मेरी बात याद रखना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 1 and 4 ओनली। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दिस पर्टिकुलर व्हाट इज दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, सो अगेन ये assumption के बारे में बात कर रहा है, तो अब इसको पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि इंडिया शुड इंश्योर। ध्यान से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ना, बार बार बोल रहा हूं, पहले पैसेज को पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखते देखते आपको पहले वीडियो पॉज करनी है, पैसेज पढ़ना है, खुद से सॉल्व करना है, एंड अगेन वीडियो चालू करके इसका आंसर देखना है। ठीक है ना, इसका लॉजिक देखना है। चलो, इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया को इंश्योर करना होगा उसकी डिजिटल इकोनॉमी को, while कीपिंग द पर्सनल डेटा ऑफ द सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। समझ में आई बात? इंडिया को यानी कि भारत को अपनी डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना होगा, इंश्योर करना होगा, लेकिन while कीपिंग, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो भारत की जो सिटीजन्स हैं उनका जो पर्सनल डेटा है वो सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ no one will innovate in a surveillance oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised। क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल इनोवेट नहीं कर पाएगा, यानी कि कुछ भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा, कब? जब उसके ऊपर सर्विलांस किया जाएगा। यानी मान लो आपके ऊपर कोई गन पॉइंट रख के कुछ करवा रहा है, तो आप कैसे अपनी फ्रीडम के साथ वो चीज करोगे? बट यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली बात की जाए डेटा की, तो अब ये बताओ, जब भी आप यूट्यूब खोलते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे यूट्यूब पे मतलब अनाप शनाप एड्स आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि एल्गोरिदम ऐसी चीज है जो आपकी हैबिट्स को पकड़ता है, आपके बिहेवियर को पकड़ता है, आपकी हिस्ट्री को पकड़ता है। जैसा आप हिस्ट्री देखेंगे, जैसा आप वीडियो देखेंगे, जैसा भी आप चीजें सर्च करेंगे, वैसा ही वो ऐड दिखाएगा, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो ऐड दिखाएगा। तो वो कहां से आ रहा है? वो हमारे पर्सनल डेटा से आ रहा है। दैट इज सर्विलांस ओरिएंटेड एनवायरमेंट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो यही इसमें इस पैसेज में बात की जा रही है। नाउ द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द डेटा मस्ट रिसाइड विद द इंडिविजुअल हु जनरेट इट।
मतलब ये कह रहा है कि अल्टीमेट जो कंट्रोल होना चाहिए डेटा का, वो उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो उसे जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मेरा डेटा जो है उसका जो कंट्रोल है वो मेरे अंदर आना चाहिए, आपका आपके अंदर आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज यू आर अ जनरेटर ऑफ इट। ठीक है, नाउ दे शुड बी इनेबल टू यूज, हमें उसको इनेबल करना चाहिए, टू यूज, टू रेस्ट्रिक्ट, टू मोनेटाइज इट। याद रखना, ये कह रहा है कि हम उसका यूज करें, उसको या रोकें, या उसको मोनेटाइज, इकोनॉमिकली हम उसका यूज कर सकें, कुछ भी एज दे विश, जैसा हमारा मन करे, जैसा आपका मन करे, जैसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति का मन करे। वही तो ये कह रहा है ना। नाउ देयरफॉर, इसलिए डेटा प्रोटेक्शन लॉज शुड इनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन, वन दैट इज यूजर सेंट्रिक एंड द प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग। सबसे पहले मुझे सिर्फ आप लोग ये बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट करके ये जरूर बताना, ये जीके का भी एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, और पता भी चलेगा कि कितना लोगों को, आप लोगों को याद है। सबसे पहले मुझे बताओ कि हाल ही में, रिसेंटली ईयर्स में, क्या पार्लियामेंट में एनी, मतलब कोई भी लॉ ऐसा बनाया है जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा हो, और अगर हाँ तो वो कौन सा लॉ है, उसके उसको आप कमेंट करके जरूर बताना। Is there any kind of data protection law is enacted by parliament in the recent years? If yes, then please write the name of that law in the comment section below. Okay. Now, so overall, this passage is talking about that India must grow its digital economy while ensuring the citizens' data privacy, like giving individuals control over their personal data. Like यही तो बात कर रहे हैं ना कि उसको उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। एंड ऑल्सो द इनोवेशन कैन नॉट फ्लरिश इन अ सर्विलांस हैवी और सर्विलांस और हैवी इनसिक्योरिटी एनवायरनमेंट। यही तो बोल रहे हैं ना ये, कि सर्विलांस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में आप इसको नहीं बता सकते, नहीं कर सकते। साथ में ये कह रहा है कि, मतलब ये आगे ये सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो दैट there is a need for the data protection framework and that empowers the users, और बेसिकली यूजर सेंट्रिक एक ऐसा डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए जो यूजर्स को प्रोटेक्ट करे, यानी हम और आप, हमें और आपको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ओवरऑल पैसेज ये बात कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात। नाउ अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, देखो जहां कहीं भी समझ में ना आए ना, जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अब पहली नजर में मेरे को अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसे कैसे टैकल करूंगा वो देखना। अभी मेरे को नहीं समझ में आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक पहले बार में पढ़ने में मेरे को नहीं समझ में आया ये क्या क्या मतलब निकल रहा है इसका। अब ध्यान से ऐसी सिचुएशन में जब भी फंस जाओ, दोबारा ध्यान से आराम से एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज से रिलेट कर रहा है, एजम्पशन मिल रहा है, इन्फ्लुएंस इससे आ रही है कि नहीं आ रही है, सेंट्रल आइडिया है कि नहीं है, कोरोलरी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात को याद रखना। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी, जिसकी बात कर रहा है ये पैसेज, इज नॉट जस्ट अ राइट। ठीक है ना, राइट के बारे में तो बात कर रहा है, बट इट हैज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमी। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि क्या प्राइवेसी का जो प्रोटेक्शन है, ये सिर्फ हमारा राइट नहीं है, बट इसका एक अपने आप में इकोनॉमिक वैल्यू भी है। भाई बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। भाई बिकॉज यहाँ पे बात की गई है ना मोनेटाइज की, भाई मेरा डेटा मैं उसको मोनेटाइज करूं, उसको यूज करूं, उसको जैसा चाहूं, उसको इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू है। ऑफकोर्स हमारा डेटा लेके बड़ी बड़ी एमएनसीज पैसे कमा रही हैं, तो उसका अपने आप में भी मोनेटाइज इकोनॉमिकल वैल्यू है, और साथ में इंडिविजुअल लेवल पे भी उसकी एक वैल्यू है। ठीक है ना, सो एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज को रिलेटेड विद दिस पैसेज, एंड ऑल्सो कॉमन सेंस में भी ये स्टेटमेंट सही है, और पैसेज से भी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन सेज that there is a fundamental link between the privacy and innovation. There is a fundamental link in the privacy and innovation. ध्यान से पढ़ो, सर्विलांस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में क्या कोई भी इनोवेट कर सकता है? यही तो लिखा है, नो वन विल इनोवेट इन अ सर्विलांस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। दैट इज द एग्जैक्ट थिंग इज रिटन हियर। लाइक देयर इज अ फंडामेंटल लिंक, अगर प्राइवेसी नहीं होगी तो इनोवेशन भी नहीं होगा। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन देम, एब्सोल्युटली इट इज राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? चलो, नाउ द नेक्स्ट सेज, अच्छा आज सारा यही आ गया है, assumption वाले क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, assumptions वाले क्वेश्चन करेंगे। तो दिस स्टेटमेंट, दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, चलो पढ़ के देखते हैं। वीडियो पॉज कर लेना, पहले पढ़ना, खुद से करना, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है ना, चलो। नाउ फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक है, जो फूड कंजम्पशन पैटर्न है भारत का, वो ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब कुछ दशकों में सब्सटेंशियल चेंज हुआ है, यही कह रहा है यहाँ पे। नाउ दिस हैज रिजल्टेड in the disappearance of many nutritious food such as millets. Millets के बारे में बात की गई है। Now, while food grains production has increased over the 5 times since independence, याद रखना ये क्या बोल रहा है, 5 times since independence. Okay. Now, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. देखो क्या कह रहा है कि this
जो होल प्रोसेस जो कि ये फूड कंजम्पशन का है, पिछले कुछ दशकों में चेंज हुआ है, सब्सटेंशियल लेवल पे चेंज हुआ है, अच्छा खासा, ठीक है ना। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो न्यूट्रिशियस फूड है ना, जैसे कि मिलेट्स हो गया, ये गायब हो जा रहा है, यानी डिसअपियरेंस हो जा रहा है इसका। वाइल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, जबकि हमारे फूड ग्रेन्स जो है उसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ ही रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो तो 5 टाइम्स, मतलब जितना इंडिपेंडेंस के टाइम पे था उसका 5 टाइम्स हो चुका है। बट इट इज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इशू ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, लेकिन इसके बाद भी जो ये कुपोषण का, जो कुपोषित लोग हैं या जो कुपोषण के शिकार होते हैं, उसका कोई भी इलाज नहीं कर पाए हैं। इस प्रॉब्लम को हम अभी तक कल इशू नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। नाउ फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, particularly staples यानी कि अनाज, which led to lower production and consumption of the indigenous traditional crops, grains, fruit, and the other vegetables, impacting and nutrition security in the process. Further, intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and the nutrition security problem by degrading the quality of land, water, and the food derived through them. देखो, passages, अब ओवरऑल बात इसको समझना, that the whole passage is basically discusses about the shift in the food consumption, like the trend in India over the few decades, past years, and how it has impacted the nutrition of India, ठीक है ना। like people's diet और the particularly जो यहाँ के लोग हैं उनकी diets have changed significantly, and as a result many nutritious traditional foods like millets की बात की गई है ना यहाँ पे, millets, तो जो मिलेट्स हैं दे हैव वैनिश्ड फ्रॉम द रेगुलर कंजम्पशन, उसका जो कंजम्पशन है उसमें कमी आई है एज पर दिस पैसेज। नाउ ऑल्दो इंडिया हैज इंक्रीज्ड फूड गेन प्रोडक्शन मोर देन द 5 टाइम्स, जो कि इसके बारे में यहाँ बात हुई है, 5 टाइम्स बढ़ा है, कब से, इंडिपेंडेंस के टाइम से। दिस हैज नॉट बीन इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। Now the agriculture sector focused on increasing production of staples like rice, staple मतलब जो अनाज की बात करें ना, चावल, गेहूं, इनकी बात कर रहा है। This led to decline in the cultivation of the consumption of diverse और traditional crops, जैसे कि fruits हो गए, vegetables हो गई, है ना, which has which are crucial for a balanced and the nutritious life, nutritious diet के लिए, balanced diet के लिए जो बहुत जरूरी है, उनमें कमी आई है। नाउ इसमें मोनोकल्चर की बात की गई है, लाइक द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, मोनोकल्चर क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप, that is called the monoculture, and repeatedly on the same land depletes the soil and the water quality also, है ना। So the ultimately it affects the quality of food and contributes and continued food and the nutrition insecurity, ये तो बात की गई ना। It will derive the food derived through the मतलब degrading the quality of land, that is it will ultimately uh, decrease contribute to the nutritional insecurity, भारत को एक न्यूट्रिशन लेवल पे इनसिक्योर बना देगा अगर यही चलता रहा तो। पूरा पैसेज इसके बारे में बात की गई कर रहा है। अब मेरे को आप ध्यान से बताओ कि रिसेंट ईयर्स में रिसेंट ईयर्स में क्या गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी स्कीम्स जो पर्टिकुलरली मिलेट्स को लेकर है तो कौन सी है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ये भी आपके जीएस पेपर से रिलेटेड है। और क्या इसके बारे में भारत सरकार ने कोई ऐसा इंटरनेशनल ईयर भी मतलब सेलिब्रेट किया था नेशनल लेवल पे, थिंक फ्रांस के साथ किया था 2023 में किया था। तो इस तरीके की चीजें हैं या एग्जिस्ट करती हैं नहीं, कौन सी स्कीम भारत सरकार चला रही है, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो इसे भी आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन गिवन इन दिस पैसेज, दैट assumption के बारे में तो बात करनी है, हमने देख लिया। नाउ ऑप्शन कहता है टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव द जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल इवन इफ डू नॉट एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट। टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहली बात तो एसडीजी की बात ही नहीं की गई। अच्छा आप मेरे को ये क्वेश्चन बताओ कि एसडीजी में कौन से नंबर गोल्स में जीरो हंगर की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर व्हाट, कौन से नंबर में जीरो हंगर की बात की गई है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है ना। ये भी रिपीट करो। नाउ ये कह रहा है कि मोनोकल्चर जो एग्रीकल्चर है प्रैक्टिस है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या हो गया, इट इज मतलब मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग्स,
मतलब आप माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करो या ना करो, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो इनएविटेबल है, वो मैंडेटरी है भाई। ये तो जस्ट अपोजिट बोल रहा है इसमें। भाई इसमें तो यही बात कर रही है कि मोनोकल्चर एग्रीकल्चर की वजह से तो ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। सो दिस इज करेक्ट अपोजिट थिंग। तो ये तो कट गया ना, ये तो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग मार्क करना है इसको हमें। ठीक है। नाउ द सेकंड सेज, अब ये फिर से वही वाला लॉजिक लगाओ, एक कट गया अगर, तो जहां जहां पे भी एक दिखेगा उसको आप यहाँ पे मार्क कर देना एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब आपके पास बी और सी है, इसी में से सही है या तो दो, ये दो तीन, तीन में तीन कॉमन है, मतलब तीन सही होगा। और दो या चार में से अब हमको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन अभी पढ़ेंगे तीनों। Now, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि डिपेंडेंस ऑन द फ्यू क्रॉप्स हैज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। देखो ध्यान से ये देखो, ये स्टेटमेंट कहां से इसमें अजम्पशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल पैसेज कह रहा है कि अगर हम कुछ फूड मतलब फ्यू क्रॉप्स में डिपेंड करेंगे, जैसे कि स्टेपल की बात की गई ना यहाँ पे, अनाज जो कि चावल गेहूं इसकी बात करें, और याद रखो कि एमएसपी भी सरकार देती है, तो जिस क्रॉप के लिए एमएसपी देती है ज्यादातर किसान उसी को उसी का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि उनको ज्यादा पैसे मिले। तो उससे क्या होता है कि अदर क्रॉप्स मार्जिनलाइज्ड हो जाती है। वही तो ये पैसेज बता रहा है। और इससे ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है कि हमें न्यूट्रिशन लेवल पे हमारी न्यूट्रिशियस जो डाइट है उसमें कमी आती है, और साथ में इकोसिस्टम में कैसे होता है, क्योंकि मोनोकल्चर जो है, मोनोकल्चर एक ही टाइप की क्रॉप को हम बार बार उगाएंगे, उसको लगाएंगे, तो उससे डिप्लीशन ऑफ द सॉइल भी होगा, और तो इकोसिस्टम खराब होगा, और साथ में वो पूरी जमीन बंजर हो जाएगी एक समय के बाद। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट टू इज एब्सोल्युटली राइट एंड इट इज वेरी रिलेवेंट, एंड टू सही है। अब ऑप्शन थ्री देखो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। पहली बात तो ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये सही है। दूसरा अगर ध्यान से देखो तो क्योंकि ये कह रहा है कि जितने भी एफर्ट्स हमने अभी तक लगाए हैं, it is not sufficiently addressed, so it is implied or we can assume from this passage that there is a need of the government to do to make the policies regarding to balance the nutritional security of India as well. So that's why this statement is absolutely right and this is wrong. Why? Because क्या कहता है ये देखो पहले पढ़ के, for the present monoculture agricultural practices farmer receive the subsidies। अब देखो subsidies की भी बात नहीं की गई है, तो this is again irrelevant or not related to the passage directly or indirectly as well. So this statement is absolutely wrong. So option B is the correct answer. I hope समझ में आया होगा। ठीक है। चलो, now next one says that it is most logical assumption। Again आज assumption वाली क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से देखते हैं। पहले पढ़ो कि ये क्या कह रहा है, अगेन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो एंड देन फिर वीडियो देखना। ठीक है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ सेक्ट, पहली बात तो मुझे बताओ कि रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में इंश्योर कर रहा है, और डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किस आर्टिकल्स के तहत हमें मिलता है वो बताओ, मतलब किस आर्टिकल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात की गई है। ठीक है ना, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज own religion, there is no such thing as religion that is wrong. But if they are to be judge of each other's religion, there is no such thing as religion that is right. Now आगे कह रहा है कि therefore all the world is right or all the world is wrong in the matter of religion. अब समझो, basically the whole passage is talking about the denomination of religion. ठीक है, denomination of religion, it basically refers to the different branches or the sects within particular religion। like अगर एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं कि क्या होता है इसका मतलब, तो जैसे जो क्रिश्चियनिटी होती है ना, उसमें भी दो सेक्ट हैं, लाइक कैथोलिक होते हैं और प्रोटेस्टेंट होते हैं। और इस्लाम में अगर बात करें तो शिया और सुन्नी। हिंदुइज्म में बात करें तो दो तसनामी संप्रदाय होते हैं ना, आपने सुने होंगे, जो भगवान शंकराचार्य जी ने एस्टैब्लिश करे थे। सो दीज आर द सेक्ट, दैट इज द डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, रिलीजन के अंदर जो सेक्ट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नाउ बेसिकली द author of this passage argues that if everyone judges only their own religion, then naturally everyone will consider their own religion right। ठीक है, मतलब वो खुद का ही रिलीजन सही बताएंगे, एंड बस नो रिलीजन इज कंसीडर्ड एज अ रॉन्ग, मतलब कि फिर उनके हिसाब से तो अगर ऐसे देखेंगे, ऐसे जज करेंगे, तो कोई भी रिलीजन गलत नहीं है। बट इफ द पीपल स्टार्ट जजिंग देयर अदर्स रिलीजन एज वेल, देन दे विल लाइकली टू फाइंड द रिजल्ट इन अदर्स फेथ और लीडिंग टू कंक्लूजन दैट रिलीजन इज कंसीडर्ड एज राइट। मतलब कोई भी रिलीजन जो है सही नहीं है, नो रिलीजन इज राइट, नो सच थिंग ऑफ द रिलीजन दैट इज राइट। यही तो बात कर रहे हैं ना, कि अगर दूसरे का देखने लगेंगे तो फिर कोई रिलीजन सही नहीं है। एंड देयरफॉर द फाइनल philosophical dilemma in this whole passage is either everyone is right in their own faith, or if they invalidate each other's belief everyone is wrong, there is no middle ground, and that is the whole passage is talking about।
नाउ मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन बताना है, पहले ऑप्शन देखो, नो मैन कैन लिव विदाउट एडरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के नहीं जिंदा रह सकता। तो एथीस्ट जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहां चले जाएंगे फिर? तो ये तो एक्सट्रीम लेवल पे गलत स्टेटमेंट है। हालांकि जो एथीस्ट होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो उनका भी जो एक बिलीव होता है, बट एज पर दिस पैसेज लिटरल सेंस में जाएंगे, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ द ऑप्शन बी कहता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। नाउ ठीक है, इसको होल्ड पे रखो, तीसरा देखो पहले, रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। चौथा कहता है, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस। ये तो आउटराइटली आप कर दो कि इसमें तो कहीं भी ये इसके बारे में नहीं कहा गया कि मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब ध्यान से पढ़ो, सी क्या कह रहा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, और बी कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब ध्यान से देखो, क्या इसकी बात कही जा रही है पैसेज में कि हमारी ड्यूटी होगी टू प्रोपगेट द वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन? ये पैसेज का ओवरऑल सार निकल रहा है, दैट इज द रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। ये कह रहा है ना कि रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन सेज द लॉजिकल, अच्छा चलो, एक तो अच्छा मिला मुझे, इन्फ्रेंस वाला। चलो, one of the biggest ironies around the water is that it comes from the rivers and the other wetlands, yet ध्यान से देखो, yet लिखा है, मतलब अब जो पहले बोला है उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ठीक है ना? इट इज सीन एज अ डाइवर्ज फ्रॉम देम। कहां से? सोर्स। सोर्स मतलब रिवर एंड वेटलैंड्स, इसी की बात कर रहे हैं। while the water is used as the resource, public policy does not always grasp that it is a part of the natural ecosystem. Efforts at engineering water systems are thus efforts at augmenting water supply rather than strengthening the capacity of the ecological system. So basically, this passage overall highlighting the water problem, like irony of a water basically which originates from the natural resources like rivers से होता है, wetlands से होता है, but public perception ऐसा बन गया है और policy भी ऐसी है that it is often treated separately from that ecosystem, है ना? And water as a resource, we tend to see water mainly as something used for a drinking or agriculture purposes के लिए industry पे use होता है। जहाँ पे policy gap की बात की जा रही है, तो public policy often fail to recognize that water is not an isolate resource, like it is a part of larger ecosystem, larger natural ecosystem. And while we are engineering it, most of efforts of engineering the water system, like we made dams, canals, pipelines, है ना? So to increase the water supply, and neglected fact इसमें ये कहा जा रहा है overall कि it is often overlooked that strengthening the health or the resilience of the natural ecosystem, भाई कि हम इसको avoid neglect कर देते हैं, ignore कर देते हैं, that sustainable water availability in the long run is neglected overall। यही तो ये पूरा पैसेज कह रहा है ना। नाउ ऑप्शन देखो, रिवर एंड अदर वेटलैंड्स शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन की बात कही गई है पैसेज में? नहीं, कट गया, इसको हटा दो। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड। देखो, मॉडर्नाइज्ड की कहीं पे बात हुई है कि इंजीनियरिंग करते समय हमें मॉडर्नाइज्ड तरीके अपनाने चाहिए? नहीं है, मार्क कर दो गलत। वेटलैंड नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ऑन ओपन सोर्स। ध्यान से पढ़ो कि हम अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट आयरनीज एज अ पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो और इंडिविजुअल लेवल पे। while effort at engineering water system, we are not taking this as seriously, we are avoiding this, that is the whole idea of the passage which author wants to say. So option C is the right answer. Now D कहता है water supply should not be free of the cost, ये तो कहीं से relate नहीं करेगा, option C is the right answer. Now जाते जाते आज के लिए इतना ही, अब यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। सो जाते जाते मैं आपको ये फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस पैसेज को पूरा सॉल्व करेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको सॉल्व करो। इसका क्वेश्चन ये है, इसमें भी लॉजिकल इन्फरेंस पूछ रहा है, ये बताना है, और फिर कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना। साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा फाइनल लेक्चर होगा, उसके साथ साथ मैं आपके बहुत सारे पर्सनल डाउट्स भी लूंगा, तो जो कुछ भी डाउट हो जरूर से लिख देना, क्योंकि लास्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें मैं सबके आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। See, remember, UPSC rarely asks you what the passage says. It asks most of the time what the passage means. That's the skill we are building here in the 5 series. Okay. Now, before you move on, I would like to recommend revisiting at least one of the passage we discussed today. और जो solve करने को दिया था ना, उसको homework दिया, उसको तो करना ही है।